ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। We have with today famous singer and one of the producers of तेरे मेरे फेरे, अनूप जलोटा with us. बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। You're disgusting. मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करता। तुमसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। जैसे मन करे क्या इसकी होती पिछले जन्म में? थे? कोई भी शादी करता क्यों? बंद करिए रन्ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो तुम लोग। दिमाग हमारा खराब होता है, माथा मेरा फूटता है। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी। कुछ बताना चाहेंगे आप? तेरे मेरे फेरे, यू आर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जी हाँ, हमारी कंपनी है सितारा प्रोडक्शंस और माया मूवीज़ केतन मेहता की। हम दोनों ने मिल के इस फिल्म को बनाया है और अब एक नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमने शुरू की है, ओपन डोर फिल्म्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को बहुत बेहतरीन तरीके से रिलीज़ किया जाए और आप सब तक पहुँचाया जाए। क्या एग्जैक्टली तेरे मेरे फेरे में आप क्या एग्जैक्टली नयापन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? तेरे मेरे फेरे को एक लाइन में अगर कहें कि आर यू हैप्पी और मैरिड, लेकिन इसमें दोनों बातें हैं कि यू आर हैप्पी एंड मैरिड। जिन लोगों ने शादी की है वो प्यार से भी रहें, ये सबक इस फिल्म से आपको मिलेगा। How do you think of getting into production? Because you have produced films earlier as well. Now you're getting back into producing a film once again. Why was it that you thought of getting into production once again with Tere Mere Phere? It's a very interesting field and I'm actually making 4 films these days. This is Tere Mere Phere. After that, Boys to Boys will come. Then there is Maqsad, then there is Neel Ko Pakadna, Impossible. Many in pipeline. All of them in the same production house or in your own production house? My production house is Sitara Productions. We are producing all the films. This is the combination, me and Maya Movies, Ketan Mehta. But we have planned to produce some more movies together. If you have to speak as a producer, what is the budget of Tere Mere Phere that you'd like to share with us exactly? Our artists are very well-known artists. We have Vinay Pathak and Riya Sen and one new couple we are introducing. And we have done entire shooting in Himachal. So this is an expensive thing and 4.5 crores is very easy to go away when you take big unit to Himachal. Place like Himachal. But we are very sure this film will definitely make profit and it will do well. It has come out very well. Okay, and you're saying 4.5 crore. Does it include the print publicity? It does not include. No, that is extra. That our other company will do, which is our distribution company. So approximately how much are you keeping for print publicity? The total will be about 8 crores. So you're looking at avenues like satellites and all as well, because these days it's a very viable proposition. Satellite is, of course, it's a big recovery and it's going to help the total production very well. If you're talking about Anup Jalota, obviously, you know, the first thing that comes to mind is the fantastic singer, the world famous singer, in fact. I believe you keep on doing your shows all over the world. Yeah, in fact, just after this interview, I'm going to perform tonight in Hare Krishna Auditorium for Janmashtami Festival. You have done fantastic shows, so many albums आपकी आ चुकी हैं. आप गज़ल और भजन दोनों आप परफॉर्म करते हैं और लेकिन भजन की वजह से आप आई थिंक बहुत ज़्यादा आपके लिए भजन से ही नाम हुआ ज़्यादा. भजन से नाम हुआ, श्रद्धा बहुत ज़्यादा है लोगों के आपके लिए. तो क्या ऐसी बात है अनूप जलोटा में? और आप आई थिंक इवन जो क्लासिकल आपका अंदाज़ है उसमें आप जिस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करते हैं, आई थिंक वो भी आपकी बहुत खासियत है. इवन एल्बम्स में भी आपने इम्प्रोवाइज़ किया है. तो ऐसा क्या है भजन में जो आपकी अदायगी है कि आपने कुछ अलग हमेशा करने की कोशिश करी है? असल में भजन में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि लोगों को समझा के गाऊं. भजन उन दिनों पुराने समय में भजन कीर्तन हुआ करता था कि उसके साथ में कथा होती थी कि उसको समझाया जाता था. वो बीच में लोगों ने बंद कर दिया था. तो मैं भजन के बीच में जो कुछ खूबसूरत प्रसंग होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो मैं समझाता हुआ, बोलता हुआ गाता हूँ. तो वो लोगों तक पहुँचता है, उनको समझ में आता है और उसको साथ में वो गाने लगते हैं. मैं ऑडियंस को साथ में गवाता हूँ. ऑडियंस को लगता है कि उनका भी कॉन्सर्ट है, सिर्फ मेरा नहीं है. सो दे ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द
कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट जस्ट ऑडियंस। तो ऐसा करने से इसकी पॉपुलैरिटी और इसका एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ा है। आई एम श्योर दैट बहुत से लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत से लोग सिंगर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का इतना नाम होता है जितना कि अनूप जलोटा का हुआ है। क्या आपका एक ट्रेडिशन आपका क्या रहा है, कहाँ से आपने सीखा है जो कि आपने हमेशा आपने इम्बाइब किया है? क्लासिकली बहुत से लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई जो है वो एक रूह को टच नहीं कर पाता। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है आपके परफॉर्मेंस में, आपकी अदायगी में, आपके कला में, जो को इतने सारे लोगों को दुनिया भर में जिसने अट्रैक्ट किया है? मैं समझता हूँ कि प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी, जो हम गाते हैं वो किसी न किसी प्योर रागा में बंधा होता है, राग में कंपोज किया होता है। और सिंप्लिसिटी ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं गाते हैं, कि जिससे कि और लोग सुन के उसको मेरे साथ गा सकें, ये भी कोशिश होती है। प्योरिटी रखने से ये होता है कि जो चीज़ आप गाते हैं वो बहुत साल तक लोगों के मन में रहती है। मैंने 30 साल पहले रिकॉर्ड किया था ऐसी लागी लगन, वो आज भी लोग गा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, आपके बच्चे भी सुनेंगे। तो 3 जनरेशन्स ने इस भजन को सुना है। तो वो एल्बम्स हमारे जो बने हैं वो 2-3 जनरेशन क्रॉस हुए हैं। इसका मतलब है कि उसमें प्योरिटी है, प्योरिटी होती है, वो मन में बस जाती है। बाकी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो थोड़े दिन अच्छे लगते हैं, चले जाते हैं, जैसे फिल्म के ही सॉन्ग्स होते हैं, जब तक फिल्म होती है तब तक वो गाने रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उसको धड़ाधड़ बनाया जाता है, वो जल्दी में बनाया जाता है। हम लोग जो कंपोज करते हैं उसमें ध्यान देते हैं, एक एक शब्द पे किस तरह स्ट्रेस देना है, कैसे उसको किस राग में कंपोज करना है, ये सब ध्यान देने के कारण वो गाने, हमारी भजन, हमारी गज़लें, वो आज तक ज़िंदा हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक लोगों के अंदर प्योरिटी और सिंप्लिसिटी के लिए इज्जत है, एक्सेप्टेंस है, ये हमेशा रहेगा। गुस्ताखी अगर माफ़ हो तो क्या 2 लाइनें आप प्लीज़ गा सकते हैं हमारे लिए? ऐसी लागी सुना देता हूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। He travels all over the world, and one of the, I think, the best known singers from India who has performed, I think, all over the world and expatriated, because we have a huge fan base in overseas countries and countries where Indians or Asians, they are huge numbers, and I'm sure that they know Anup Jalota very well. What is it about India that you have discovered when you have performed in various other countries? India is our main field, the maximum audience, the maximum concerts, maximum recordings, whatever we do in India. Because in India, we have audience like 100% audience. In America, we have 5% audience. So America, we don't say that this is our very big market. Of course, I go there every month. I do 3 concerts in America every month. But that doesn't mean that it's very big market. In India, I do 12 concerts a month. So India is our main market. And because there is India in every country now, it's not just in India. So we have to travel and go to those Indians who are not living in this country and they are still our audience. एक चीज़ मैं आपसे हमेशा पूछना चाहता था कि आपने एल्बम्स में और अपने भजन में, गज़ल में आपने बहुत कामयाबी आपने हासिल करी, फिल्मों में हमने अनूप जलोटा को इतना क्यों नहीं सुना? जैसे पंकज उधास को हमने बहुत सुना है, बहुत से उनके गाने हमने आए हैं, तो ऐसा अनूप जलोटा के उतने क्यों नहीं चीज़ें सामने आई? मैंने कई फिल्मों में गाया, लेकिन मुझे कभी फिल्म में गाने का मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ लाइव कॉन्सर्ट, सामने ऑडियंस सुन रही हो, वहीं वाह वाह आ रही हो, वहीं तालियां बज रही हो, वो मुझे शौक़ है, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं अपनी फिल्मों में नहीं गाता, मैं इतनी सारी फिल्में बना रहा हूँ, मैंने पहले बनाई हैं, तो कभी एक आध गाना कोई गा लिया नहीं, तो मैं तो सारे गाने गा सकता हूँ मैं अगर फिल्म का मालिक हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि जो उस गाने के लिए बेहतर आर्टिस्ट है, सिंगर है, उसको ही उसमें पेश किया जाए, और मैं जो चीज़ ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मैं वो करूँ, और मैं इंजॉय करता हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स। अगर फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पहले ज़माने में और आज के ज़माने में कौन से ऐसे कुछ ज़बरदस्त सिंगर्स रहे हैं या फिर म्यूज़िक कंपोजर्स रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत छाप छोड़ी हो? पुराने में जयदेव जी, मदन मोहन, शंकर जयकिशन,
उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए, इन्होंने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि जितने कंपोजर्स हैं फिल्म के, वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि वो फिल्म के लिए म्यूज़िक बनाते हैं। फिल्म के लिए ही म्यूज़िक बनाना चाहिए, वो फिल्म को और खूबसूरत बनाए, ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए। जैसे फिल्म है दबंग, तो उसमें मुन्नी बदनाम हुई बिल्कुल करेक्ट है। उसमें मन तड़पत हरिदर्शन को आज नहीं लगाया जा सकता, जबकि वो बेहतरीन गाना है। उसके लिए कोई दूसरी फिल्म चाहिए। गाने सही तरीके से बने, सही फिल्म के लिए बने, तो वो सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर है। कुछ फिल्में जब ऐसी आ जाती हैं, जिसमें परिणीता फिल्म आई तो उसमें उसके हिसाब के गाने आ गए, बॉर्डर आई तो बॉर्डर के हिसाब के गाने आ गए, और दबंग आई तो दबंग के हिसाब के गाने आ गए। तो बिल्कुल सही काम म्यूज़िक डायरेक्टर्स कर रहे हैं। दे आर कंपोजिंग फॉर द फिल्म, नॉट फॉर देमसेल्फ। एनी म्यूजिक कंपोजर which have been your favorites? मुझे इन दिनों शंकर एहसान लॉयड बहुत पसंद है, A.R. रहमान बहुत पसंद है। बड़े प्यार से काम करते हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल। लोग शादी करते क्यों हैं? फ्री सेक्स। फ्री पंचिंग बैग। डिस्कशन, नो फाइटिंग। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं ऑटो पे हाथ नहीं उठाता। अरे नहीं करनी है मुझे ये शादी। Finally, sir, if you'd like to say something about तेरे मेरे फेरे, क्या आपको लगता है कि is special about this film that people will be looking forward to? तेरे मेरे फेरे बहुत खूबसूरत फिल्म है, जिस तरह ये शूट की गई है। दीपा जी ने बहुत प्यार से बहुत अच्छी लोकेशंस में जाके शूट किया है, तो आँखों के लिए बहुत सुहावनी फिल्म है। संगीत बहुत अच्छा है, मन के लिए बहुत सुहावनी फिल्म है, और हंसना तो आपको बहुत पड़ेगा, क्योंकि विनय पाठक जहाँ होंगे वहाँ हंसना तो होगा ही। आई लव यू मुस्कान, और बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं हम कभी अलग नहीं हूँ। विनय पाठक में आपको क्या खासियत लगती है? Why you think he's so appreciated? ही इज़ लाइक अ कॉमन मैन। उनको देख के अपने को लोग ये समझ सकते हैं ये मैं ही हूँ। हंसाते रहते हैं तो लोग अपने गमों को भूल जाते हैं थोड़ी देर। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड एक्टर। If you can also briefly tell us something about your other 3 films that you mentioned, what exactly are they all about? Yes, and the star cast of that? There are 3 films. एक है बॉयज़ तो बॉयज़ हैं, जिसमें दिव्या दत्ता हैं, अंशुमन झा हैं, और हमारी एक फिल्म है नील को पकड़ना इम्पॉसिबल। इस फिल्म में हमने वो डायरेक्टर लिए हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन की डॉन डायरेक्ट की थी, चंद्रा बारोट। वो फिल्म को कर रहे हैं, उन्होंने नए आर्टिस्ट लिए हैं। Chandra Barot is directing once again. Okay. तो ही इज़ कमिंग विद अ बिग बैंग। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट वो हमारे पास लाए थे, जिसे हम बना रहे हैं। और एक फिल्म है मकसद। मकसद जो है ये टेररिज्म के ऊपर है, इसमें मिथुन चक्रवर्ती, ओमपुरी है। और एक फिल्म हमने अभी फाइनल की है, जिसको केतन मेहता डायरेक्ट करेंगे, माई ब्यूटीफुल वाइफ। उसके तो उसके लिए भी हमने काम शुरू किया है। बहुत जल्दी उसके आर्टिस्ट भी हम साइन करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट रोलिंग दैट। Okay, the news is नील को पकड़ना impossible है. That will be directed by Chandra Barot, the director of Dawn. He's been not making any film for I think the longest period of time. That is something very interesting. Who are the actors in that film? इसमें I have taken new artists. कुमारी चढ़ गई नी, चढ़ गई कल हद से आगे बढ़ गई नी। That was Anup Jalota talking about his production plans vis-a-vis Tere Mere Phere, at the same time other film that he is doing. The interesting thing that we just came to know about Chandra Barot directing his film Neel Ko Pakadna Impossible है, and the other ventures which are coming up. अनूप जी ने अपने कुछ as सिंगिंग करियर के बारे में भी डिस्कस किया है, बताया है कि फिल्मों में उतना परफॉर्म क्यों नहीं उन्होंने किया, एंड वाई ही लाइक्स लाइव परफॉर्मेंसेस। और हम लोग की बहुत खुशकिस्मती है कि ऐसी लागी लगन उन्होंने हमें गा के भी सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बॉलीवुड हंगामा में आने के लिए। आपका, थैंक्स वेरी मच। We really hope that all your films do very well, and looking forward to hearing much more from your production house and you as a singer as well. थैंक यू सो मच। सखा सप्तपदा भवः। अरे माल गाड़ी जल्दी बोला, जल्दी। सखा सप्तपदा भवः। अरे स्लो ट्रेन, सखा सप्तपदा भव, सखा सप्तपदा भवः। सखा सप्तपदा भव, सखा सप्तपदा भवः। सखा सप्तपदा भव, सखा सप्तपदा भवः। सखा सप्तपदा भवः।